अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद का थाना बलोचनी की हदूद में एक नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होता है। पुलिस हरकत में आती है और महज 48 घंटे के अंदर अंदर डकैत गैंग को ट्रेस आउट कर लेती है। डकैतों का अंजाम क्या हुआ और कत्ल होने वाला नौजवान कौन था, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना बलोचनी के इलाके में एक नौजवान जो मेहनत मजदूरी करके अपने वालिदैन और छोटे बहन भाइयों का सहारा था, उसे डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा और उस नौजवान के वालिद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये कैसे वाक़या पेश आया, घर वालों को इत्तला कैसे मिली और पुलिस का जो एक्शन था इस पे, पुलिस ने जिस तरीके से जो है मुलजिमान पे हाथ डाला, उससे वो किस हद तक सेटिस्फाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम दस्सिओ जी। मोहम्मद शफीक है जी। शफीक साहब, कत्ल होने वाला ਤੁਹਾਡਾ बेटा सी, हाँ जी। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ 28 ਤਰੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਟਾਈਮ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਇਤਲਾ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ? ਬੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਜੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਚੱਲ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ। ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ 24 ਕੁ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 24 ਸਾਲ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਆ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਭਰਾ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ? ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥਾਣਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਆਪ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਮਿਹਨਤ? ਹਾਂਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜਵਾਨ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਚਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਰੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। नाज़रीन किराम, एक बूढ़ा बाप जो इंसाफ का मुतलाशी है, जिसका जवान बेटा इस दुनिया से चला गया और वो सहारा था, वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, मेहनत मजदूरी करता था और वालिदैन का वाहिद सहारा था। अपनी ड्यूटी से वापस आते हुए नीम तारीकी में उसे मुसल्ला डकैत रोकते हैं और उसके पास जो भी नकदी होती है वो ले लेते हैं और मुज़ाहमत पर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। अहले इलाका और घर वालों पे ये ख़बर एक क़यामत बनकर टूटती है कि इस तरह से एक जवान मौत जो है वो हो गई है। पुलिस को जब इत्तला मिलती है तो पुलिस इस पर पूरा रिस्पॉन्ड करती है और थाना बलोचनी पुलिस जो है इस बात पे मुबारकबाद की हकदार है कि इस डकैत गैंग को उन्होंने ना सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि पूरे तरीके से नकेल भी डाली। बहरहाल एक बूढ़ा बाप जो है, उसकी फरियाद, उसके कपकपाते हुए होंठ और उसकी आंखों में मौजूद नमी ये बता रही है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर हरकत में ना आते तो शायद अभी तक ये इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा होता। लेकिन पुलिस जाग रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और बलोचनी पुलिस ने जो है ये बात साबित की है कि हम जराइम को नकेल डालने का पूरा आज़्म रखते हैं। नाज़रीन इकराम, कत्ल होने वाले नौजवान के हमसाए इलाका मकीन, उनके अजीज़ व अकारब जो हैं
वो अभी तक इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं कि इस कदर मेहनत करने वाला, इस कदर फर्मा बरदार वालिदैन की खिदमत करने वाला नौजवान जो है चंद ज़ालिमों के हाथों इस दुनिया से चला गया और उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइए। मोहम्मद इमरान मेरा नाम है। इमरान भाई, क्या करते हैं आप? मैं अपना खेती बाड़ी करता हूँ। आप ज़मींदार हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और जो कत्ल होने वाला नौजवान है ये आप उसी के साथ, उसी के हमसाए में रहते हैं? जी हाँ, उसी गांव के रहने वाले हैं हम। और कैसे ये वाक़या कैसे पेश आया, कैसे आप लोगों को कैसे इत्तला मिली, और फिर आप लोग जो हैं ज़ाहिर है फर्स्ट रिस्पोंडेंट थे, इसके वालिद के साथ भाग दौड़ सारी आप लोगों ने की। बताइएगा हमारे नाजरीन को कि ये वाक़या कैसे पेश आया। कैसे वो काम से आला सतारा केमिकल में वो काम करता था। मैक्सिमम को 8:30 के राउंड में वो ड्यूटी करके अपने घर जा रहा था। रास्ते में उन लोगों ने नाका लगाया हुआ था चोरों ने, तो उनको रोकने की कोशिश की। हो सकता है वो ना रुका होगा, तो उन्होंने रोक के उसको तलाशी वगैरह ली। हो सकता को हाथों पाई पे आगे हो गए, तो उन्होंने फिर सुल्तान को फाइल का मार दिया। और ये ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, वहाँ पर ये ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इसकी डेथ। जी ऐसे ही जख्मों की ताब लाते हुए ना इसकी डेथ हो गया। इलाका मकीन जो हैं वो रिश्तेदारों से ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, क्योंकि आपके साथ पला बड़ा होगा, आपके सामने पला बड़ा होगा। ज़ाहिर है कुछ एज डिफरेंस होता है, लेकिन इंसान का इल्म होता है कि उसकी आदत कैसी हैं, बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ उसका सलूक कैसा है। ये जो कत्ल होने वाला नौजवान है, कैसा इसका रख रखाव कैसा था, कैसी ज़िंदगी गुजारता था? ये बहुत अच्छा बच्चा था, अपने माँ बाप का फरमाबरदार था, अपनी मेहनत मजदूरी करता था, अपने माँ बाप का सहारा था। ये इसके आसरे ये जी रहे थे बेशक। और बाकी बहन भाई छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं, वो किसी छोटे बिल्कुल बच्चे हैं। और ये वाहिद कफ़ील। जवान हुआ, वाहिद कफ़ील था, अपने वालिदैन का सहारा था। और हमें हमारे ज़रा ये बताते हैं कि इनके वालिदैन भी जो हैं वो बहुत गरीब हैं, बिलो पावर्टी लाइन है, और उनके वालिद जो है वो भी कोई मेहनत मजदूरी करते हैं। जी बिल्कुल, वो जिनके वालिद बहुत गरीब आदमी हैं, वो कब्रिस्तान में काम करते हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालते हैं। लेकिन ये बच्चा इनका वाहिद सहारा यही था इनका। अच्छा बताइएगा, ज़ाहिर है पुलिस और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपना काम करते हैं, लेकिन ये इस तरह की जो वारदात होती है जिसमें नागहानी मौत वाक़ हो जाती है, वो पूरे इलाके पे एक सदमा और एक खौफ की फ़िज़ा होती है। तो इस वाक़े के बाद इलाका मुकीनों के क्या हालात थे, क्या तासुरात थे? वो बिल्कुल बारे हर तरह के बेचारे वो खौफज़दा हो गए कि ये क्या बन गया, ये गरीब आदमी है, इस तरह का को बिल्कुल देखा नहीं, सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके यार। उसकी एज के जो बाकी नौजवान होंगे जो ड्यूटीज़ पे जाते होंगे, शाम को अंधेरे में वापस आते होंगे, उनमें फिर एक खौफ भी पाया जाता हो। हाँ बिल्कुल खौफ पैदा हो गया। लोग काम पे जाना छोड़ गए थे, यार हम क्या करें, कल को हमारे साथ भी ये हो सकता है, इस तरह के हुआ हो गया अगर फिर क्या होगा। फिर पुलिस एक्शन में आई। ज़ाहिर है पुलिस ने जो है वो एक डाकू जो है इसी वाक़े का वो बाद में पुलिस इनकाउंटर में मारा भी गया, एक को इन्होंने पकड़ के वो जुडिशली भी कर दिया। बाकी के लिए भी पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। जब इस तरह का कोई काम होता है कि पुलिस जो है फिर एक्शन में आती है और पकड़े भी जाते हैं, फिर कुछ थोड़ा सुकून और हौसला मिलता है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जिनका वो लखते जिगर चला गया इस दुनिया चल, वो तो नहीं वापस आना ना। बेशक कई इस तरह के कई लोग चले जाएं, दुनिया से चले मार जाए, उन्होंने कुछ करना है, इसीलिए वो मार दिए जाते हैं ना। उनका कसूर होता है, लेकिन जो बेचारे काम से आते हैं उनका क्या कसूर होता है, जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर आते हैं शाम को। बिल्कुल, वालिदैन का जो नुकसान हुआ है, उस ख़ानदान का जो नुकसान हुआ है, उसका तो अज़ाला शायद मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो वाहिद कफ़ील था, वाहिद कमाने वाला था। और क्या समझते हैं आप इस तरह की जो बढ़ती हुई वारदातें, फैक्टर क्या है इसके पीछे? क्या बेरोज़गारी है, क्या गुर्बत है, महंगाई है, किस चीज़ को हम ब्लेम करें? ये तो बस कुछ कह नहीं सकते, क्या गुर्बत भी हो सकती है, लेकिन गुर्बत के मारे ये तो नहीं है कि लोग किसी का खून कर दिया जाए ना। देखो ना, गुर्बत है ठीक है, तो उसी कुछ जो कुछ लेना हो ले ले उनसे, लेकिन ये तो नहीं कि कोई गरीब आदमी है वो चला मेहनत मजदूरी करता है, उसको फायर मार के उसको दुनिया से फायर चला जाए, वो ये तो कोई बात नहीं ना है, ये इंसाफ तो नहीं ना फिर। नाज़रीन किराम, इलाका मकीन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक वो शायद उनको यकीन नहीं है कि उनका प्यारा, उनके सामने खेलने वाला, मुस्कुराहटें बखेरने वाला, अपने वालिदैन का सहारा बनने वाला नौजवान जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और उसका जुर्म सिर्फ़ इतना था कि वो अपने छोटे बहन भाइयों का कफ़ील था। उसका जुर्म ये था कि वो बूढ़े वालिदैन का सहारा था और वो सिर्फ़ अपने काम पे फोकस करने वाला था। और इन मुसल्लह डाकुओं ने उसे रास्ते में रोककर लूटते हुए जो है वो रास्ते में कत्ल कर दिया। कुछ और इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइए। वालेकुम सलाम, शहबाज अकरम। शहबाज साहब, आप भी इलाका मकीन हैं, आपके सामने वो पला बड़ा नौजवान बहन भाइयों का वाहिद कफ़ील था, आपको कैसे इल्म हुआ, कैसे रिपोर्ट हुई ये चीज़?
तकरीबन 9:30 बजे का वक्त था जब ये मसला पेश आया। ये गांव है, शहर नहीं है। यहाँ बस 1 सेकंड में ख़बर जो फैल जाती है। तकरीबन ये कोई 8-10 घर छोड़ के आया मेरे घर से दूर। मैं भी वहाँ गया हूँ, पता चला कि उसके ना फायर लग गया। मैंने SHO साहब से उन पर बात की है। उन्होंने कहा कि यार हमने इसे ना फैसला अपना खुलियावरा हॉस्पिटल ले आए। मैंने पूछा इसकी तबीयत कैसी है, कह रहे थे कि भाई अभी ठीक है। 17 मिनट बाद मैंने फिर बात की है, कह रहे थे कि भाई ये अलाइड हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया है। हम भी चले गए पीछे, वहाँ मियाँ आफ्ताब साहब थे। जब गए तकरीबन 3 बोतलें इन्होंने लग गई सी ब्लड की। ब्लड दी। चौथी लगी आ 1 बज के तकरीबन 30 मिनट से इस बच्चे की डेथ हो गई। ये जो वाकया सर SHO ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੋੜ ਉੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ खुड़ियावाला से आगे अलाइड तक एम्बुलेंस लेके गई जी 1122 और जब इस वक्त रात को डेथ हुई है तब आप हॉस्पिटल में थे। जी। आपकी उससे किसी तरह की कोई बात, कोई इशारा? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। मुलाकात नहीं हो पाई? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਿ ਬਚ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੀ ਬੋਤਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਆ ਅੱਧੀ ਕੀ ਚੱਲੀ ਆ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਤੋ ਸੁਨਸਾਨ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੱਗਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਆ, ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ 90 ਚਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ 91 ਰੇਬੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰ ਛੋਟਾ ਸੂਆ, ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਰੈਸਕਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆਲੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅਲਾਈਡ 'ਚ। ਅਲਾਈਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲੂਕ, ਇਤਫਾਕ, ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ? ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਖਲੋਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰਾਤ ਸੌਂ ਲੈ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਮੁਕੀਨ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਪਲਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਗੱਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਚੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 17 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ, ਸਿਗਰਟ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਦ ਘਰ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ, ਉਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ।
ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਲਿਦੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੌੜਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਉਣੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕਮੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰਦਾਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਦੇਖੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਗੱਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ, ਗੱਡੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ, ਚ ਬਹਾਦਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰੋ। नाज़रीन किराम, एक ऐसा खला जो कभी पुर नहीं हो सकता। एक इंसानी जान की कीमत उसके घर वाले, उससे एसोसिएटेड लोग और उसकी फैमिली वाले जो हैं वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं। अगर डकैती में मुज़ाहमत ना होती तो शायद ये नौजवान, ये मुस्कुराहटों भरा नौजवान आज हमारे दरमियान मौजूद होता। लेकिन चंद शरपसंद अनासर, चंद जराइम पेशा अफराद की एक फेल की वजह से, डकैती में मुज़ाहमत की वजह से इस नौजवान को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और नौजवान भी ऐसा जिसकी अहले इलाका गवाही दे रहे हैं, जिसकी तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने वालिदैन का सहारा था, वो अपने भाई बहनों के लिए बड़े बड़े ख्वाब रखता था कि मैं अपनी फैमिली को स्टेबल करूँगा, वो नाहक कत्ल कर दिया गया। बलूचनी पुलिस ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। जैसे अहले इलाका की आपने गुफ्तगू सुनी कि पुलिस ने जो है हर मुमकिन कोशिश की और अल्लाह ताला ने उस कोशिश में कामयाबी भी दी। पुलिस जो है वो पुरअज़्म है कि ऐसे जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस रखी जाएगी और उन्हें हर मुमकिन कानून के कटहरे में लाया जाए। नाज़रीन, फैसलाबाद पुलिस जराइम पेशा अफराद के गिरद घेरा तंग किए हुए है। आए रोज़ ऐसी इतलात मिलती हैं कि जराइम पेशा अफराद और गैंग्स के ख़िलाफ़ फैसलाबाद पुलिस बेमिसाल कामयाबियां समेट रही है। फैसलाबाद में टीम मुजरिम कौन इस वक्त थाना बलोचनी के अंदर मौजूद है, जहां पे थाना बलोचनी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और एक डकैत गैंग का सुराग लगाया। इस डकैत गैंग ने इसी गिरफ्तारी से कुछ रोज़ कबल जो है एक नौजवान को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने इसे सीरियस चैलेंज समझते हुए एक्सेप्ट किया और महज 2 दिन के अंदर अंदर न सिर्फ इनका सुराग लगाया बल्कि इन्हें पाया तकमील तक भी पहुंचाया। एक इनमें से जो नौजवान है, जो डकैत है, वो जुडिशियल है और एक पुलिस मुकाबले में अपनी जान गंवा चुका है। मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर आफ्ताब हुसैन मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं कि इस वारदात की, इस वाक़े की इन्हें रिपोर्ट कैसे होती है, कैसे पुलिस एक्शन में आती है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब भी बताइएगा कि थाना बलोचनी की हदूद में एक नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होता है, आपको रिपोर्ट कैसे हुआ ये वाक़या, कैसे इतला मिली और फिर रिस्पॉन्ड आप लोगों ने इस पर कैसे किया? वालेकुम अस्सलाम। 15 पर कॉल मौसूल होती है कि डाकुओं ने एक नौजवान को दौरान डकैती ज़ख्मी कर दिया है। तो अतला पाकर थाना की गाड़ियां, अफसरान और हम मौका पर पहुंच जाते हैं। तो जो ही मौका पर पहुंचते हैं तो नौजवान मजरूबी हालत में उधर पड़ा होता है। तो रेस्क्यू की टीम आने से पहले हम अपनी गाड़ी पर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल उसका इलाज मुआवजा करवाने में मसरूफ़ रहते हैं, तो वो जानवर नहीं हो सकता। आफ्ताब भाई, मुझे बताइएगा कि जहाँ पे ये वाक़या पेश आया, जो पुली बताई जा रही है जिस पे ये वारदात हुई, उसका थाने से तकरीबन फ़ासला जो है वो कितना हो? थाने से जहाँ ये वक़ूआ होता है, थाने से फ़ासला 6-7 किलोमीटर है। 6-7 किलोमीटर है। और ये फैसलाबाद पुलिस इस बात पे शाबाश की मुस्तहिक है कि कॉल चलती है और कॉल चलने के बाद पुलिस इतना क्विक रिस्पॉन्ड करती है कि रेस्क्यू से पहले वहाँ पे पहुँच जाती है और नौजवान जो ज़ख्मी है उसे हमारे ज़राए ये कहते हैं कि ख़ुद आप लोगों ने ख़ुद अपने हाथों से हॉस्पिटल शिफ्ट। जी बिल्कुल, काफ़ी मेहनत की है। हॉस्पिटल, आइड हॉस्पिटल तक भी ले गए हैं, उसके ब्लड का अरेंज भी किया है, लेकिन वो जानवर नहीं हो सका।
तो जाम बहक होता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। मजरूबी हालत के दौरान ही पुलिस ने CPO साहब के अहकामात के मुताबिक आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तो टीमें तश्कील दी जाती हैं, तो जिसमें ह्यूमन सोर्सेज भी हैं, टेक्निकल वसाइल भी बरूए कार लाए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 72 घंटे से पहले वो गिरफ़्तार मुलज़म हो जाता है। तो इसी दौरान एक मुलज़म दोबारा दौरान डकैती उधर पुलिस इनकाउंटर में मारा भी जाता है। तो दूसरे मुलज़म को अल्हम्दुलिल्लाह बाद आज पुलिस कार्रवाई आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद उसे जुडिशल किया जाता है, जिसने दौरान हरासत पुलिस की गिरफ़्तारी में बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। भाई बहुत सारे उसने इंकशाफात भी ज़रूर किए होंगे, और ये इस बात की दलील भी है कि पुलिस जो है वो एक बदकिस्मती से जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है उसके बाद फिर आराम से नहीं बैठती। पुलिस एक तरफ उस नौजवान उसके घर वालों को इंगेज करती है, उसकी पोस्टमार्टम और बाकी जो लवाजमात होते हैं उसके बाद उनको पूरा कर रही होती है, और दूसरी जानिब जो है वो क्विकली अपने इलाके में पेट्रोलिंग इतनी बढ़ा देती है कि वो अगली वारदात करते हैं और वारदात के फ़ौरी बाद उनकी पुलिस से जो है वो मुठभेड़ हो जाती है, जिसमें जो है एक डकैत मारा भी जाता है। बाकी जो इनके दीगर साथी हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कोई अपना नेटवर्क जो है वो पुलिस का वो काम कर रहा है, उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी कुछ काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो बाकी मुलज़मान उनके ख़िलाफ़ भी पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल तौर पर कर रही है। तो पेट्रोलिंग जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर है। CPO साहब के अहकामात के मुताबिक जो ही ये फैक्ट्रियों मिलों में छुट्टी होती है तो लोग घरों को जाते हैं, तो उसी दौरान जो वीरान रास्ते थोड़े से होते हैं तो उधर ये मौका पाकर ये जो गंदे लोग हैं, डकैत हैं, ये मौका पाकर लोगों को डकैती भी करते हैं और साथ जान भी लेते हैं। आफ्ताब भाई, इस पुलिस स्टेशन की एक बात ये भी है कि ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का लास्ट कॉर्नर है, टूवर्ड्स शेखुपुरा ये आखिरी थाना है, और नॉर्मली हमने ये देखा है कि जो आखिरी थाना होता है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे जराइम पेशा अफराद सरगर्म इसलिए भी ज़्यादा होते हैं कि वो वारदात करते हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा घुसते हैं कि शायद पुलिस हम तक यहाँ आराम से नहीं पहुँच पाएगी। दूसरा, बलोचनी पुलिस स्टेशन जो है इसमें फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पे गांव जो हैं वो दूर दराज हैं। ऐसे तो मुमकिन ही नहीं होता कि हर वक्त हर जगह पे पुलिस मौजूद रहे, लेकिन पुलिस की अच्छी कारकर्दगी की ये दलील है कि पुलिस ने जो है एक वारदात जो अफसोसनाक है जिसमें एक नौजवान अपनी जान से गया, उसके फ़ौरी बाद ऐसा रिस्पॉन्ड किया कि डकैत गैंग का सफाया हो गया। आप क्या समझते हैं कि इस डकैत गैंग के बाद किस हद तक जो है वो अमन बहाल हुआ, किस हद तक जो है वो वारदातों में कमी आई? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि लोगों में जो खौफ था वो ख़त्म हो गया है। पहले लोग फैक्ट्रियों मिलों में काम करने से भी अवॉइड करते थे कि हमारे साथ ऐसा वक़ूआ ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बाउंड्री है हमारी, इसको हमने काफ़ी सिक्योर किया हुआ है। इसमें पेट्रोलिंग का प्लान जो है वो अफसरान के अहकामात के मुताबिक काफ़ी बेहतर है। तो इसमें अब लोग बड़े तहफ़्फ़ुज़ में हैं और अपना काम के लिए आना जाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उनकी जानो माल की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी रही है और इंशाल्लाह रहेगी। आफ्ताब भाई, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आपका आवाम से भी इंटरेक्शन रहता है और आपका रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन जराइम पेशा अफराद से भी वास्ता पड़ता रहता है, आप इंटरोगेट करते हैं, तफ्तीश करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस की ड्यूटी है इनको क्राइम को कंट्रोल करना, या जो देही इलाकों के ख़ास तौर पे लोग हैं, अहले दे हैं, वो भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं, थोड़ी सी अपनी जो जैसे विजिलेंस कमेटियाँ होती हैं गांव की, जैसे गांव देहात में ठीकरी पैरा चल रहा होता है, क्या ये चीज़ें दोबारा से एक्टिवेट करके बहुत फ़र्क नहीं डाला जा सकता वारदातों में? जी बिल्कुल, आवाम का जो तावन है वो पुलिस के साथ हमेशा मुस्बत रहा है और इस तावन के साथ काफ़ी हद तक जराइम में कमी आ सकती है। जो इस तरह के लोग हैं उनकी निशानदेही की जा सकती है और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। के अंदर आफ्ताब भाई एक डर भी होता है, एक खौफ होता है कि मैं पुलिस को कॉल करूंगा, अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं, कोई मुश्तबा शख्स को देखते हैं या कोई ऐसी कार्रवाई देखते हैं जो खिलाफ कानून हो रही होती है, तो एक आम शहरी के अंदर एक डर होता है कि मैं पुलिस को अगर इतला दूंगा तो मैं कहीं खाम में रगड़ा ना जाऊँ। इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए क्या ज़रूरत है? क्या
क्योंकि हमारी पुलिसिंग बहुत बेहतर हो गई है पहले से। पुलिस स्टेशंस न सिर्फ बिल्डिंग्स चेंज हुई हैं बल्कि ओवरऑल पुलिस का कल्चर भी काफ़ी हद तक तब्दील हो गया है। अब आप पुलिस स्टेशन में एंटर होते हैं तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका इस्तकबाल करता है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जैसे वो विक्टिम स्पॉट ऑफिसर्स जो हैं वो उनको तैनात कर दिया गया है। पुलिस काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। अवाम का ट्रस्ट जो है वो कैसे डेवलप होगा ताकि अवाम जो है वो खुलकर अपने साथ जो मसाइल और उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं वो पुलिस तक पहुंचा सके? अगर कोई अतला देता है हमें तो सबसे पहले उसका नाम सिगा राज में रखा जाता है। तो दूसरा, अगर कोई थाना में आता है तो उसके लिए भी हमने अच्छी जगह बनाई हुई है, उसको पूरा तावन की यकीन दहानी करवाई जाती है और उसके जो भी काम होते हैं उसके जायज़ वो किए भी जाते हैं। 15 पे जब एक कॉल रिसीव होती है तो नॉर्मली जो हमारा रिस्पांस टाइम होता है वो तकरीबन कितना? मैक्सिमम 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस हरकत में आ जाती है? जी बिल्कुल, 5 से 10 मिनट में हम अपने इलाका में जहाँ भी ये एक्टिविटीज़ को क्रिमिनल्स हो, हम मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में पहुँच जाते हैं। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर आफ्ताब हुसैन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन बलोचनी हमारे साथ मौजूद थे और इस केस पे लम्हा बलम्हा इनकी गिरफ्त रही। इनके सामने जो है वो सारा एग्जीक्यूट किया पुलिस ने। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि थाना बलोचनी की हदूद में एक नौजवान जो एक फैक्ट्री वर्कर था वो अपनी ड्यूटी करके वापस घर जा रहा था। रास्ते में डाकू जो हैं वो एम्बुश किए हुए थे, नाका लगाए हुए थे। उन्होंने उसे जब लूटने की कोशिश की तो मज़ाहमत पर उस नौजवान को गोली मार दी जिससे वो ज़ख्मी हो गया। 15 पे कॉल मौसूल होती है, पुलिस बर वक्त और इतना क्विक नाज़रीन कराम रिस्पॉन्ड करती है कि रेस्क्यू इदारों के पहुंचने से पहले पुलिस हुकाम जो हैं वो आला अफसरान SHO साहब और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं और उस ज़ख्मी नौजवान को पुलिस अपनी गाड़ी में जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट करती है, जहां वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिलता है, वो कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस FIR लॉन्च होने से कबल ही हरकत में आती है। DSP खुरडेवाला और SHO थाना बलोचनी जो हैं ये टीमें तश्कील देते हैं और आफ्ताब हुसैन साहब की ज़ेर निगरानी भी जो है वो टीमें तश्कील दी जाती हैं। यहाँ पे पुलिस इतना क्विक रिस्पांस नाज़रीन कराम देती है कि महज 48 घंटे यानी 2 दिन के अंदर अंदर जो है तमाम वसाइल जो दस्तयाब होते हैं पुलिस को, जैसे पुलिस अपना एक नेटवर्क होता है इनका खबरी नेटवर्क जो इनके मुखबर होते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसे कहा जाता है, उसको एक्टिवेट करती है। यहाँ पे जो पुलिस की टेक्निकल सपोर्ट है उसको बरूए कार लाया जाता है, सेल फोन्स का डाटा लिया जाता है और महज 48 घंटे के अंदर अंदर इस गैंग को ट्रेस कर लेते हैं। अब ये गैंग दोबारा वारदात करने की कोशिश में होता है जब इनका एक साथी पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है, जबकि एक को पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उससे तफ्तीश करने के बाद उसके दीगर साथियों की तलाश में है और गिरफ्तार मुलजिम को करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए पुरज़्म है। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना बलोचनी की हदूद में फैक्ट्री से छुट्टी करके घर वापस जाने वाला नौजवान मुसल्ला डाकुओं के हत्थे चढ़ा और लूट मार के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग हुई जिससे वो जान की बाजी हार गया। पुलिस का इसमें सबसे पॉजिटिव किरदार ये है कि पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और न सिर्फ जाए वक़ुआ पर पुलिस पहले पहुंची बल्कि डाकुओं को 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रेस आउट भी कर लिया। हमारे साथ DSP सर्कल खुरडेवाला नसरुल्लाह चट्ठा साहब मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं कि कैसे पुलिस को इत्तला कैसे मिली और कैसे इस गैंग के ख़िलाफ़ फिर पुलिस ने मौसर कार्रवाई की। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये क्या वाक़या था जिसमें एक नौजवान अपनी जान की बाजी हार गया और पुलिस ने इस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें इशा के टाइम ऑलमोस्ट इतला मिलती है 15 के ज़रिए इस तरह एक बंदे को उधर फायर लगा है। हम फ़ौरन मूव करते हैं, SHO भी उधर पहुंचता है, मैं भी और पहुंचा था मौके पे। अभी मजरूब जो है वो सांस ले रहा था, हमने फ़ौरन उसको प्राइवेट गाड़ी में जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया, लाइट हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वो जान भर ना हो सका। SP साहब भी आ गए मौका पे, तमाम टीम ने वहाँ से फ़ौरन काम शुरू कर दिया। इसमें सबसे जो पॉजिटिव पहलू है पुलिस का, जो पॉजिटिव साइड है, लोग हज़ार तनकीद भी करते हैं लेकिन यहाँ पे फैसलाबाद पुलिस और ख़ास तौर पे सर्कल खुरडेवाला आपकी सरबराही में जब टीम्स पहुँची तो लोग अहले इलाका ये पुलिस के हक़ में गवाही देते हैं
कि पुलिस जो है वो रेस्क्यू 1112 से भी पहले पहुंच गई और अभी वो ज़ख्मी ज़िंदा था, तड़प रहा था ज़ख्मों से। पुलिस ने किसी चीज़ का भी इंतज़ार किए बगैर ख़ुद उसको उठाया, रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल तक पहुंचाया। उसकी किस्मत थी, उसके घर वालों की बैड लक थी कि वो जानवर नहीं हो सका, अपनी जान की बाजी हार गया। और दूसरा जो पॉजिटिव वो पहलू ये बताते हैं कि एफआईआर के अंदराज से पहले पहले टीमें तश्कील दे दी गई थी। ये क्या वाक़या? जी बिल्कुल, जब एक इंसिडेंट हो गया, बंदा मजरूब हो गया वारदात के दौरान, तो सबसे पहले तो उसकी ज़िंदगी बचाना जो है ना तरजीह थी। उस पर फ़ौरन उसको शिफ्ट करवाया, लेकिन चूँकि अल्लाह की तरफ से उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, टीमें फ़ौरन तश्कील दे दी गई ताकि उस तो खुरा रवां किया गया, इर्द गिर्द से पता जो की गई, टेक्निकली बुनियाद पे उसका जियो फेंसिंग का तरक किया गया, और भी जो है कैमरा जात इर्द गिर्द जो थे उनसे मदद ली गई। और तमाम मेरी टीम, एसपी साहब भी, सीपीओ साहब की वाज़ेह डायरेक्शन के मुताबिक हम उधर बिल्कुल पूरा दिन और पूरी रात उधर ही मौजूद रहे। तो तमाम सोर्सेज बरोए कर लाते हुए ये रिकॉर्ड याफ्ता आदमी थे, फ़ौरन उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया हुआ था और लोगों का नाक में दम किया हुआ था। तो अल्लाह पाक ने हमारी मदद की और हमारे सीनियर्स की सुपरविजन में हमें कामयाबी मिली। सर, इनकी जब गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दी गई, पुलिस ने नो डाउट जो है वो तकरीबन 48 घंटे बग़ैर नॉन स्टॉप जिसे हम कहते हैं वो कार्रवाइयाँ की, इनको ट्रेस आउट किया। और ये इलाका मकीनों की शायद खुशकिस्मती थी कि कानून के रखवाले हमारे मुहाफ़िज़ पुलिस एहलकार जो हैं वो उनका इन्हीं डाकुओं के साथ जो है वो एक मुकाबला भी हो गया, इनकाउंटर हो गया, जिसमें वो एक डकैत जो है वो अपने साथियों की फायरिंग से जाँ बाक हुआ, दूसरे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। जो दीगर उनके साथी हैं, क्या उनकी तलाश के लिए भी जो है वो पुलिस अभी अपना नेटवर्क बिछाए हुए है? जी बिल्कुल, जब इसमें कामयाबी मिली मुलजमान की सूरत में, तो बाकी जो साथी हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई और उनकी गिरफ्तारी का पूरा तरह किया गया। इस केस में तमाम जो है मुलज़िम बकाया भी वो अरेस्ट हो चुके हैं और उनका प्रोसेस मुकम्मल हो गया। सर, खुड़ियावाला सर्कल तकरीबन सारे का सारा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे पुलिस स्टेशन खुड़ियावाला की हदूद हों या बलोचनी पुलिस स्टेशन की। ये नौजवान भी एक फैक्ट्री में काम करता था, छुट्टी के वक्त जा रहा था। हमने अक्सर रिपोर्ट भी किया है कि जब फैक्ट्रीज़ में छुट्टी का टाइम होता है, ख़ास तौर पर 5 से 8 के दरमियान मुख्तलिफ शिफ्ट्स की जब छुट्टी होती है, पुलिस नो डाउट उस वक्त डॉल्फिन टीम्स में हरकत में नज़र आती हैं। पुलिस की मोबाइल्स जो हैं वो अक्सर पेट्रोल कर रही होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है बहुत बड़ा एरिया है, तो रूरल एरियाज़ में जो जैली सड़कें होती हैं वहाँ पर जब इनको मुलज़मान को और डकैत्स को जो है जब मौका मिलता है तो ये लोगों को धर लेते हैं। क्या कोई मुस्तकिल बुनियादों पे ऐसी कोई मनसूबाबंदी की जा रही है कि लोगों में अवेयरनेस भी पैदा की जाए कि लोग जो हैं वो ख़ुद भी थोड़े से मोहतात रहें, थोड़ा ग्रुप्स की शक्ल में ट्रैवल करें? क्योंकि ये नौजवान अकेला था और इसके पीछे कुछ फासले पर जो है वो दीगर लोग थे। तो क्या अगर ऐसी जो वीरान सड़कें हैं, लोगों को थोड़ा सा खुद एहतियात का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि थोड़ा वेट कर लें और 2, 3, 4 लोग जो हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में अगर ट्रैवल करें तो शायद इस तरह की वारदातों में मज़ीद कमी लाई जा सके? जी बिल्कुल, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। इस पे हम भी उनको गाइड करते रहते हैं, उनकी रहनुमाई करते रहते हैं। लोग मोस्टली इस तरह ही जाते हैं, खुसूसन जो शाम की शिफ्टें हैं, रात के वक्त, वो टोलियों में भी जाते हैं, ग्रुपों की शक्ल में जाते हैं। लेकिन कोई एमरजेंसी की वजह से कोई इक्का दुक्का अकेला भी निकल जाए तो फिर ज़ाहिर जनाब पीछे लोग भी इसी ताक में रहते हैं, वो अपना वो भी मौका तलाश करते हैं। सर, टीम मुजरिम कौन ने हमेशा पुलिस की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी लोगों को यही मैसेज दिया और ये इसकी ज़िंदा मिसाल है कि 15 पे कॉल हुई और पुलिस ने फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया। अभी एक ट्रेंड चल पड़ा है लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से, जिस पे पुलिस एक्शन भी ले रही है, एफआईआर्स का इंदराज भी किया जा रहा है, लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है। बोगस कॉल्स जो लोग 15 पे करके, एक तो पुलिस का जो टाइम है वो और दूसरा वसाइल, उनको जो है उनकी वेस्टेज का सबब बनते हैं। अगर खुदा न खास्ता इस केस में भी 15 की कॉल लेट होती, शायद पुलिस टाइम पे ना पहुंचती। यहाँ पे पुलिस के क्विक रिस्पांस की वजह ये है कि बर वक्त
15 की कॉल हुई और पुलिस ने विद इन 5 to 6 मिनट्स रिस्पॉन्ड किया और ये इतना कम टाइम था कि रेस्क्यू बाद में पहुंची है, पुलिस वहां पे पहले पहुंच गई। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो पुलिस के वसाइल को ज़ाया करने का सबब बनते हैं, जो पुलिस का टाइम वेस्ट करते हैं ये बोगस 15 पे कॉल्स करके? ये किस हद तक जो है ये ख़तरनाक अमल है और फेल है? जी, हर दौर में सीनियर अफसरान अच्छे होते हैं, लेकिन मौजूदा आईजी साहब ने जहाँ तक जी आपने कहा कि हर केस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड का ना सिर्फ हदायत और आर्डर दिया हुआ है, उसका एक मेकनिज़म भी रखा हुआ है उसको फॉलो अप लेने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या रिस्पॉन्डिंग टाइम है, लोग या फीसद अटेंड करते भी हैं या फेक ही उस पर उसकी कॉल का जवाब दे देते हैं। तो उस पर बिल्कुल हर कॉल पे पहुंचना हमारी जिम्मेदारी और ड्यूटी है। लोगों को सर क्या कहेंगे कि लोग जो शहरी हैं, शहरी 15 का इस्तेमाल बिल्कुल इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में करें, क्योंकि खुदा न खास्ता गलत कॉल करने की सूरत में किसी और हकदार की हक तलफी भी हो सकती है। ये बिल्कुल देखें जी, मोस्टली पढ़ी लिखी है वहाँ में हमारी अवेयरनेस है, अब सोशल मीडिया है, नेटवर्क मुख्तलिफ नेट्स हैं, अवेयरनेस है टीवी की वजह से और ज़राए कम्युनिकेशन अब तो पहले वाले नहीं रहे, तो हर बंदे को पता है। इनको बिल्कुल ऐसा ख्याल रखना चाहिए, चूँकि जेन्युइन कॉल जो है ना उस पर पुलिस ने तो हर कॉल पे रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस है, जानते हैं सारा कि एमरजेंसी की सूरत हाल में भी जो उनको ना कॉल का सहारा लेना चाहिए। सर इसके अलावा भी कुछ शर पसंद या शरारती लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ शायद अपनी तस्कीन की खातिर जो है वो फ़ोन उठाते हैं और पुलिस को जो है वो एंगेज कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या प्रॉपर एक मैकेनिज़्म है, सज़ा भी इनको मिल सकती है? जी बिल्कुल, जो इनक्रेजी वाले हैं ना, काबिल इस्लाह लोग हैं, बिला वजह जानबूझ के तंग करते हैं, उनके लिए बिल्कुल है कार्रवाई भी होती है, उनके खिलाफ मुकदमात होते हैं टेलीग्राफ एक्ट के और दीगर भी इस तरह की जो भी कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ बिल्कुल की जाती है। क्या पैगाम देंगे सर सर्कल के लोगों को कि किस तरह पुलिस से कोऑपरेट करें, किस तरह अपनी शिकायत को बर वक्त इंदराज करवाएं ताकि पुलिस जो है वो बर वक्त रिस्पॉन्ड कर सके? जी बिल्कुल, चूँकि हमेशा से ये रहा है कि जेन्युइन कंप्लेंट जो है उसको ही सामने लाया जाए या किसी फोरम पे उसको ही पेश किया जाए जेन्युइन कंप्लेंट, तो उसमें बिल्कुल रिक्वेस्ट है एले हल्का से एले सर्कल से, बिल्कुल जेन्युइन जो रिक्वेस्ट है, जेन्युइन कंप्लेंट है उसको सामने लाता है कि पुलिस आपकी हर सूरत और जेन्युइन मदद कर सके। नाज़रीन किराम, DSP सर्कल खुरड़ियावाला नसरुल्लाह खान चट्ठा साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद में खुरड़ियावाला सर्कल है और इसका पुलिस स्टेशन है बलोचनी। इसकी हदूद में बदकिस्मती से ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जिस पे तमाम अहले इलाका में खौफ और दहशत की लहर दौड़ जाती है। फैक्ट्री वर्कर एक ऐसा नौजवान जो अपने वालिदैन का सहारा और अपने ख़ानदान का वाहिद कफ़ील था, वो अपने जॉब से फ्री होकर घर वापस जा रहा होता है। रास्ते में एक पुली है 90 रेबे के करीब, सुनसान तकरीबन वो रोड है, वहाँ पे डाकू एम्बुश किए होते हैं, नाका लगाकर लोगों को लूट रहे होते हैं। ये नौजवान शायद मुज़ाहमत करता है जिसके नतीजे में डाकू फायरिंग कर देते हैं और ये गोली लगकर ज़ख्मी हो जाता है। 15 पे कॉल की जाती है और पुलिस बर वक्त और बर्क रफ्तारी से जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। पुलिस किसी भी और शख्स से पहले या किसी भी और रेस्क्यू इदारे से पहले वहाँ पहुँचती है। पुलिस एहलकार प्राइवेट गाड़ी में उस ज़ख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल करते हैं और फिर 48 घंटे के अंदर अंदर पुलिस इस रफ्तार से काम करती है कि उस डकैत गैंग का न सिर्फ सुराग लगाया जाता है बल्कि एक मुलजिम को हिरासत में लिया जाता है, जबकि एक मुलजिम वारदात के बाद जो फ़रार हो रहा था उसका पुलिस से एनकाउंटर होता है। वो छुपने की कोशिश करता है अपने साथियों के साथ और वहीं पे अपने साथियों की फायरिंग से वो दम तोड़ जाता है। सो इस पूरे वारदात के 2 मुलजिमान अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। बाकी के लिए पुलिस ने पूरा प्लान कर रखा है। पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है और फैसलाबाद पुलिस के अफसरान का यही पैगाम है लोगों के लिए कि आपकी हिफाजत हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।